Hello friends, welcome to my channel. We are dealing with the topic rational numbers. Let us start discussion for concept test 3. The first question is identify positive and negative rational numbers. So if only one negative sign is there or सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो हम उसे नेगेटिव रैशनल नंबर कहते हैं. सो दिस विल बी योर नेगेटिव रैशनल नंबर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इंटीजर कॉन्सेप्ट से नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस विल बी 2 सो दैट आंसर विल बी पॉजिटिव. इट मीन्स ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है. Now the third one, total number of negative sign is 1, that is odd. It means answer will be negative. So this is your negative rational numbers. यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स so that your doubts will be more clear. Now next question is convert into standard form. Standard form में दो चीजें होती हैं. First one, convert into simplest form, and second point is denominator should be positive. So we will do both the things. So first thing, we will convert into a simplest form. 29 and 40, 21 and 49 is divisible by 7. So this will become 7 upon 7 sevens are 49. Sorry, 7 threes are 21 एंड 7 7 जा 49. तो ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इस न्यू माइनस साइन को हम लगा देंगे न्यूमरेटर के साथ. सो द आंसर विल बी -3 अपॉन 7. नाउ 32 एंड 48. These two numbers are divisible by 16. 16 2s are 32 and 16 4s are 16 3s are 48. Now again this numerator is denominator is negative, so we will put this minus sign with the numerator, so the answer will be -2 upon 3. Now it's a bigger number, so we will try to cut. Okay, so these numbers are divisible by which number, that we will find out. For that we will use here divisibility test. 8 plus 4 will give you 12, 5 plus 1 will give you 6. It means both the numbers are divisible by 3. So you can cut by 3. 3 2s are 6, 3 8s are 24, 3 3s are 9, 3 5s are 15. Now 28 and 35, again these two numbers are divisible by 7. 7 4s are 28, 7 5s are 35. So 4 by 5. So here -4 upon 5. Since minus sign is with the numerator, we will write -4 upon 5. Your denominator is positive. So this is the standard form. Now next, write three equivalent rational numbers. So three equivalent rational numbers you can multiply by 2 upon 2, 3 upon 3, 4 upon 4. Here directly I am writing answer. So 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16. Minus sign is there, so just write down the minus sign. Now we will recite table of 5. 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. Similarly, here also we will recite table of 5. So 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. Now we will recite table of 8. 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32. Since minus sign is there, so we will write down minus sign. So this is the answer. Now count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So you will give marks out of 8, and don't forget to take your parents' signature so that they will come to know how much you have understood. Now let us start with today's topic, comparison of rational numbers. Which rational number is greater or which rational number is smaller?
So the first thing I told you, we will use all the concepts of fraction to find out which one is greater and smaller. सिर्फ एक नई चीज क्या होगी यहाँ पे, यदि नेगेटिव रैशनल नंबर, यदि आपका नेगेटिव इंटीजर डिनोमिनेटर में, तो फर्स्ट थिंग आपको उसको पॉजिटिव बनाना है. सो मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव so that your number will become -8 upon 9 and the other one will become -4 upon 5. ओके ना. इसके बाद डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. अब ये क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन वाले हो गए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको सिर्फ इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. आपका हो जाएगा -8 इंटू 5, दिस विल गिव यू -40. और दूसरी तरफ आपका हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय -4, सो दिस विल बिकम 9 4 जा 36. Now you can do comparison -40 and -36. Which one will be greater? -36 is greater. So therefore, which one will be greater? Your right hand side fraction. So here 4 upon 5. So you can write down -8 upon 9 is smaller than 4 upon -5. तो इस तरह आपने देखा कि ये जो मेथड है, सेम मेथड हमने फ्रैक्शन में भी की है. विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, बट फ्रैक्शन में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता था. यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर यदि नेगेटिव है तो फर्स्ट स्टेप आपको उसको पॉजिटिव बनाना है. नेगेटिव साइन आपको न्यूमरेटर के साथ लिख देना है. यदि ये दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यदि ये -4 अपॉन -5 होता तो आपका जो फ्रैक्शन बन जाता वो हो जाता 4 अपॉन 5. अगेन हम यहाँ पर इंटीजर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. यहाँ पर आपको दो नंबर्स मिलते हैं -40 एंड -36. ये भी इंटीजर की प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर रहे हैं. विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, बेस्ड अपॉन दैट वी विल फाइंड आउट विच रैशनल नंबर इज ग्रेटर. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ यही दो नंबर को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले लिखना है. यदि आपने मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज कर दिया, आंसर का ऑर्डर चेंज कर दिया, आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे. इसलिए सिर्फ ये दो नंबर्स को ही आपको एरोज से ज्वाइन करना है. दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है. बचे हुए दो नंबर्स आपको राइट हैंड साइड में लिखना होता है. Again the same questions, fill the boxes with smaller than, greater than or equal to. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, तो बाय ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते. दोनों के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हैं और दोनों ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं. तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. आपको मिलेगा 4 7 जा 28 -28. बचे हुए जो दो नंबर है 5 5 जा 25 -25. इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? -25. So -5 by 7 will be greater. Now second question, here you can see that 14 and 16 you can convert into simplest form. So this will become 4 7 2 7 जा 14 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16. So आपको मिलेगा 7 अपॉन -8. अब ये नेगेटिव नंबर है, आप इसको पॉजिटिव साइन ऊपर ले आइए. -7 अपॉन 8 -7 अपॉन 8. तो ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्वल होंगे. नाउ 1 अपॉन -3 -1 अपॉन 4. आप इस माइनस साइन को फिर से आप ऊपर ले जाइए. सो दिस नंबर विल बिकम -1 अपॉन 3 एंड अनदर नंबर विल बिकम -1 अपॉन 4. इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा -4. बचे हुए दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर दीजिए. -3 -4 -3, which one is greater? -3 is greater, so -1 by 4 will be greater rational number. सेम वे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन साइन एक ही होता है, सिर्फ वे ऑफ रीडिंग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स 2 and 3. So 3 is greater than 2 और 2 is smaller than 3. So जो साइन है greater than smaller than वो साइन सेम ही होता है, बस वे ऑफ रीडिंग इज डिफरेंट. Now rational numbers on rational numbers on number line. तो rational numbers में सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हमने फ्रैक्शन में यूज किया था. तो फ्रैक्शन में हमने बेसिकली ये तीन तरह के फ्रैक्शंस देखे थे: प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन यदि है तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच ही लाई करेगा. मिक्स फ्रैक्शन है, सो मिक्स फ्रैक्शन विल लाई बिटवीन दिस नंबर 2.
सेम कलर से लिखा है मैंने. एंड द नेक्स्ट नंबर आफ्टर 2 विच नंबर कम्स 3. सो द नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड द नेक्स्ट नंबर 3. यदि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें कन्वर्ट करना होता है मिक्स फ्रैक्शन में. तो मिक्स फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, 9/5 को आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 5 1 जा 5 is to 4/5. So the number will lies between 1 and the next number 2. So ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने फ्रैक्शन में यूज किए थे सेम वही हम रैशनल नंबर में भी यूज करेंगे. डिफरेंस बस इतना है कि यदि ये पॉजिटिव है तो जीरो के राइट हैंड साइड में होगा, यदि ये नेगेटिव है तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होगा. So let us start with the first question 2/5. ये मैंने आपको फ्रैक्शन टॉपिक में भी बताया था, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है so that your work will be more easier. 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, so always lies between पॉजिटिव नंबर है इसलिए lies between 0 and 1. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, नीचे वाले टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे 5. और आउट ऑफ 5 हाउ मेनी पार्ट्स आर रिक्वायर्ड 2. सिंस ये पॉजिटिव नंबर है तो हम जीरो के राइट हैंड साइड में देखेंगे. ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट 0 और 1 है उसके बीच में कितने होने चाहिए 5. सो वी विल डिवाइड इन 5 पार्ट्स. सो 1 2 3 4 आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट्स है. 5 में से हमें कितने पार्ट्स चाहिए 2 पार्ट्स. हम यहाँ से गिनना चालू करेंगे 1 and 2. तो यहाँ पर आप एक एरो बना सकते हैं. That number will be 2/5. Take the another example -3/4. This is negative number तो ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा. So lies between 0 and -1. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर 4. 4 में से आपको कितने पार्ट्स चाहिए हैं 3. ओके. सो नाउ बिटवीन 0 एंड -1 हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में. सो 1 2 3. यदि 4 पार्ट्स है तो हमें 3 लाइंस खींचनी होती है 1 2 3 4. अब हम चालू करेंगे 3 पार्ट्स. सो 3 पार्ट्स हम इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे. सो 3 काउंट करिए 1 2 3. सो दिस विल बी द पॉइंट -3/4. Take another example 2:4/5. This is your mixed fraction. So mixed fraction किसमें lie करता है this 2 and the next number 2 के बाद next number आता है 3. पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट हैंड साइड में आएगा ये नंबर. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर 5 and how many parts we require 4. ओके. सो अब हम यहाँ 2 and 3. सो 2 and 3 के बीच में हमें कितने पार्ट्स करना है 5 पार्ट्स करना है. 5 पार्ट्स करने के लिए हम लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे 4. सो 1 2 3 4. 4 लाइन्स ड्रॉ करी 5 पार्ट्स मिल गए 1 2 3 4 5. आउट ऑफ 5 हमें कितने लेना है 4. 4 हम इस डायरेक्शन में काउंट करेंगे पॉजिटिव नंबर है इसलिए. सो 1 2 3 4. तो ये जो नंबर होगा ये हमारा होगा 2:4/5. टेक द नेक्स्ट एग्जांपल -3:2/5. -3 मीन्स ये 0 के लेफ्ट हैंड साइड में होगा. सो द नंबर लाइज बिटवीन -3 एंड द नेक्स्ट नंबर -3 और इसके नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर होगा -4. ओके. सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं यहाँ पर 5. आउट ऑफ 5 हाउ मेनी पार्ट्स यू रिक्वायर 2. सो बिटवीन -3 एंड -4. -3 एंड -4 आपको कितने पार्ट्स चाहिए हैं यहाँ पर 5. लाइन आप कितनी ड्रॉ करेंगे 4. सो जस्ट ड्रॉ 4 लाइन्स 1 2 3 4. अब इस 4 में हमें कितने पार्ट्स चाहिए 2. नेगेटिव नंबर है तो हम नेगेटिव साइड में काउंट करेंगे. सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1. दिस इज योर पॉइंट नंबर 2. तो आपका ये जो पॉइंट होगा ये होगा -3:2/5.
टेक अनदर एग्जाम्पल 7/4 किस तरह का फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हम इसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आपको मिलेगा 1:3/4। दैट नंबर विल लाई बिटवीन 1 एंड द नेक्स्ट नंबर 2। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 4। आउट ऑफ 4 हाउ मेनी पार्ट्स वी रिक्वायर, 3। पॉजिटिव नंबर है तो हम 0 के राइट हैंड साइड में लेंगे। किनके बीच में लेना है, 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में हमें कितने पार्ट्स करने हैं, 4। 4 पार्ट्स के लिए लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे हम, 3। सो 1 2 3। आउट ऑफ 3 हमें कितने पार्ट्स चाहिए, 3। पॉजिटिव नंबर है, इस डायरेक्शन में काउंट कीजिए 1 2 and this is your third last point. So make arrow over there. This number is 7/4. Now take another example -8/3 again improper fraction. Convert into mixed fraction. आपको मिलेगा -2:2/3. So this number will lie between -2 और -2 के लेफ्ट में कौन सा नंबर है, -3. So this number will lie between -2 and -3. Total number of parts are 3. Out of 3 how many parts are required, 2. So between -2 and -3 how many parts we require, 3 parts we require. So we will draw only 2 lines. So let us draw 2 lines. Okay, since this is negative number so we will count the line in the left hand side. So this is 1 and this is 2. So make one arrow over there. This will be -8/3. इनमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, जब भी आप नंबर लाइन बनाते हो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में ये एरोज बनाना ज़रूरी है। यदि आपने एरोज नहीं बनाया तो एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने देखा होगा कि मैंने जितनी भी लाइंस बनाई हैं यहाँ पर वो इक्वी डिस्टेंस है। व्हाट डज इट मीन्स, यदि मैंने यहाँ 0 लिया है, यहाँ 1 लिया है, यहाँ 2 लिया है, ऐसा यदि आप नहीं करते हैं इक्वी डिस्टेंस नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आपने 0 ले लिया, यहाँ 1 लिया, यहाँ 2 लिया, तो ये जो डिस्टेंस है नंबर्स के बीच का यदि वो सेम नहीं है तब भी आपका नंबर लाइन, आपकी नंबर लाइन रॉन्ग होती है, आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आपको जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तब आपको ये एरोज बनाना ज़रूरी है और नंबर्स जो है वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। 3 बातें ध्यान देने वाली है। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो लाइज बिटवीन 0 and 1। मिक्स फ्रैक्शन है तो जो भी आपका नंबर है मिक्स फ्रैक्शन में वो और उसके नेक्स्ट नंबर के बीच होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन में करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट हैंड साइड में आएंगे। So now the time for your concept test. So my dear students, take your 5 minutes time to complete this question. I have made this bracket so that you are supposed to write down everything whatever I have written in my last slides so that your work will be more easier. Complete the text. In next video, before starting the next video, we will do discussion for concept test 4. Thank you for watching today's video. Don't forget to like, subscribe and share my video, and also to watch my next video.